Very good morning to each and everyone. Respected colleagues, today in in-house training program, we are going to conduct the training today on National Education Policy 2020. This topic is not new nowadays for us. We are planning, we are doing, and this training is also the part of new educational policy. From last year itself, we have done lots of trainings online as well as in-house. We have ideas about why this is happening. This is the beginning of new education policy. Today in this in-house training, we will have complete knowledge of this policy, what is policy, why it is different from other one, how we are going to conduct our schooling systems, and this topic is especially very important for we teachers because we have to work, we have to impart our education. We are the pioneer of everything in the field of education. So if we don't know about this policy, certainly we will not fulfill the goal of this one. So let's start this topic, National Education Policy 2020. What is the need of NEP 2020? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या जरूरत है, हमें इसकी जरूरत क्यों है? The statement of Nelson Mandela is displayed the entrance of University of South Africa. We all know Nelson Mandela was one of the most famous leaders in the politics of South Africa. नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में एक लंबा नेशनलिस्ट मूवमेंट लाया था, and even in his time he was jailed also for 28 years. 28 साल तक वो जेल में रहे, and finally the system of apartheid was finished by his attempt. साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा चेंज लाया था, तो उन्होंने एजुकेशन के महत्व के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट कहा है जो साउथ अफ्रीका के यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा हुआ है। ये हमारे एजुकेशन के संबंध में बहुत सारी बात कहता है। नेल्सन मंडेला says, destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing the cheating in examination by the students. अगर हम लोग इस सेंटेंस पर ध्यान दें, if we see the importance of this sentence, Nelson Mandela says that a nation can be destroyed if the education system is not working properly. किसी देश को तबाह करने के लिए एटम बम या लॉन्ग रेंज के मिसाइल की जरूरत नहीं है। हम किसी देश को खत्म कर सकते हैं कैसे? वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लोअर करके, वहाँ के बच्चों को हम अलाउ कर दें कि वो एग्जाम में चीटिंग करें, तो फिर ये देश अपने आप तबाह हो जाएगा। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग ह्यूमन बीइंग। जब से मानव सभ्यता आई है तब से एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। Education makes us resource. Without education, we are just liabilities. आज हम अपने समाज में देखें, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, the people who are not educated, they are living very pitiable life. They are not managing to earn good salaries. They are working hard from the morning till evening, despite they are unable to clear their basic needs. उनको खाना तक सही से नसीब नहीं होता, पैर में जूते नहीं होते, कपड़े नहीं होते। Why? They are lacking education. तो एजुकेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें इससे समझ में आता है। इस देश में एजुकेशन का लेवल नीचे होगा, इस देश में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, उस देश की तरक्की के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। So education is something which is need of humanity. ये मानवता की जरूरत है और इसमें हमें आगे बढ़ना है। एजुकेशन के फील्ड में भी आज कॉम्पिटिशन है। हम लोग जिस एजुकेशन को अक्वायर कर रहे हैं आज उस पर
systematic लग रहा है. The way we are imparting education, the way our students are learning, that is not competitive to the other countries, especially to developed countries. दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में काफी रिफॉर्म कर रखा है. But our education system in India says that we are not able to make our students capable of doing new things by this education system. That's why we are in need of reformation in education. And that's why our government has taken very nice steps towards improvement of education system in 2020. This is not the first education policy. ये पहला education policy नहीं है. इसके पहले भी दो पॉलिसी आ चुके हैं. This is the third education policy in India. First education policy was introduced in 1968 when Indira Gandhi was the PM of our nation. Second national policy was introduced in 1986 when Rajiv Gandhi was PM. And the third one, a great change in entire policy, is given by our Narendra Modi government or BJP government. And this policy is going to change complete system of education, and we are going to be competitive to entire world. इस education system से हमें जो knowledge मिलेगा, our students will be able to compete with any nation of the world. दुनिया के किसी भी देश में हमारे बच्चे जा सकते हैं और वहाँ की education policy के साथ आगे बढ़ सकते हैं और compete कर सकते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. हमारे जीवन में एजुकेशन के महत्व को अगर हम समझें, मैंने पहले कहा कि एजुकेशन हमें रिसोर्स बनाता है. एजुकेशन मेक्स अस रिसोर्स. रिसोर्स के बारे में हम सभी जानते हैं. ऐसा कोई भी चीज, एनीथिंग विच फुलफिल आवर नीड इज रिसोर्स. एनीथिंग विच मेक्स आवर रिक्वायरमेंट फुलफिल, दैट इज रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग्स themselves are resource, because we human beings used to help others. We are fulfilling the needs of others. हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए हम resources. But think about, if we are not a perfect resource, if we have weakness, if we are not properly educated, what will be the impact? इसका क्या परिणाम होगा? Nowadays it is very easy to get certificates. आज बच्चे पढ़ रहे हैं, पास भी होते जा रहे हैं, finally they reach the higher level, they have lots of certificates, but जब competition के फील्ड में जाते हैं, they are rejected because they have no personal knowledge as per their certificates. हमारी एजुकेशन पॉलिसी में अब तक जो होता रहा है, वो केवल पास कराने और आगे बढ़ाने का एक तरीका ही होता है. तो अगर किसी व्यक्ति के पास सर्टिफिकेट है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? Patient die at the hands of such doctors who are having lots of certificates but not knowledge. अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, उसके पास तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, but if he has acquired certificates by getting 33% marks or by cheating in examination, what will be there? Will he be able to save patient's life? क्या वो पेशेंट के लाइफ को सेव कर पाएंगे? Doctors cannot save the life of patients. Similarly, an engineer who is having degrees, who have lots of certificates, becomes engineer, but if he has no talent, then the buildings collapse at the hands of such engineers. Building गिरेगा, वैसे इंजीनियर सब कंस्ट्रक्शन करेंगे. Money is lost at the hands of such economists or accountants. अगर हमें अयोग्य अकाउंटेंट्स मिलते हैं, अयोग्य अगर कोई इकोनॉमिस्ट होते हैं, their plan will not be successful in enhancing our capability and our GDP or our development of our nation. इससे क्या होगा? हमारी मनी लॉस हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे. Humanity dies at the hand of such religious scholars. दुनिया में हर आदमी किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं. Most of the people have faith in religion and they are guided by religious scholars.
पंडित, मौलवी, प्रीस्ट सबसे गाइडेड होते हैं, but think about those people if they are not in reality a scholars. They have certificate or they have acquired their position, but they have no knowledge. Then they will impart wrong knowledge. और भारत तो ऐसे जूझता रहा है इस तरह के सिस्टम से। ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातें तो रोज दैनिक जीवन में आती हैं। यहाँ तो बम फोड़ने को भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर दूसरे की हत्या करना को भी धर्म से कहा जाता है। Who are the people? They are not perfectly educated. They have a little bit knowledge, but what should be given to others, what others should be taught, they have no knowledge at all. उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो अगर ऐसे धार्मिक गुरु होंगे तो मानवता खत्म हो जाएगी, लोग हिंसा करेंगे, people will fight with each other and society will not go ahead, society will be ruined. Justice is lost at the hands of such judges. ऐसा ही एग्जाम्पल जज का भी हम लेते हैं कि अगर जज जानकार नहीं हो, अगर उसमें काबिलियत नहीं हो, तो जो व्यक्ति इनोसेंट होगा, जो निर्दोष होगा, उसी को सूली पे चढ़ा देंगे। लोगों को जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा, न्याय रहेगा ही नहीं। So the collapse of education is collapse of nation. इसीलिए एजुकेशन का कोलैप्स होना वो देश का कोलैप्स होना है। तो जो नेल्सन मंडेला ने कहा, उनके एक एक शब्द जो है उन पर विचार करने की आवश्यकता है और हमारी वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और एक क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं, एक ड्रामेटिक चेंज कह सकते हैं जो इस समय देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो ये एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे एजुकेशन के फील्ड में, वैसे हमारा देश, हमारा समाज, हम खुद आगे बढ़ेंगे। What does education policy mean? एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? एजुकेशन पॉलिसी refers to collection of laws and rules that govern the operation of education system. हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम चलता है उसके लिए सर्टेन रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता है। If different institutions start giving their knowledge in their own way, all of them may not be correct. तो सभी सही नहीं हो सकते हैं। Some of the institutions may digress from the real path. हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों जो सही नॉलेज इम्पार्ट न करें। तो पूरे देश में एजुकेशन से संबंधित परफेक्ट रूल्स और गाइड्स की आवश्यकता होती है। And these rules and regulations are set by the policy, and that is called education policy. तो education policy ऐसे लॉज का कलेक्शन है, ऐसे रूल्स का कलेक्शन है जो ये बताता है कि एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे एजुकेशन देंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा। Why is it important to study education policy? अब प्रश्न होता है कि हमें इस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमें क्यों एजुकेशन पॉलिसी को जानना चाहिए। हम एजुकेशन पॉलिसी के साथ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एजुकेशन पॉलिसी को जानेंगे। पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प आवर स्कूल और कॉलेज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड क्रिएट a standard of quality of learning and safety as well as expectations and accountability. पॉलिसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेज को ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से फंक्शन करना है। ये एक स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं, एक गोल सेटअप करते हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एंड फॉर मैनेजमेंट, फॉर एवरीवन। स्टूडेंट्स नो व्हाट दे हैव टू डू, हाउ दे विल स्टडी, देन दे विल secure better marks. And at present only scoring marks is not our objective. In addition to marks, we have to focus on behavior building, character building. और इस मामले में तो मैं कहूँगा कि we are not successful. Our education system is not capable of making behavior well. Lots of examples आपको मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी वो हिंसक होते हैं। They are not mentally fit. They have different ideas about their society, about their nation. So, स्कूल कॉलेजेस जब ये रूल सेट करते हैं तो एक पार्टिकुलर रूल्स होता है। स्टूडेंट्स नो व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड व्हाट दे हैव टू बी।
उनका गोल क्या है। Similarly, we teachers have certain goals that we have to complete the syllabus as well as we have to reshape the moral values of the students. We have to make a good citizen of our nation so that in coming time they may be a good resource. अगर हम उन्हें अच्छी तरह से एजुकेट नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे, हमारे लिए लाइबिलिटी बनेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए लाइबिलिटी बनेंगे। आप सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा न हो, उसके पास आय की साधन नहीं हो, वो क्या करेगा, सर्वाइवल के लिए दूसरे का धन छीनेगा, दूसरे पर गोलियां दागेगा और पूरे समाज की शांति व्यवस्था को खत्म करेगा। दिस इज अ बिग चैलेंज। तो हमें स्टूडेंट्स गोल सेट करने होते हैं। वी हैव टू सेट गोल्स ऑफ टीचर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। हमारी संस्था कैसे आगे रन करेगी, कैसे हम समाज को बेहतर ढंग से अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए एक निश्चित गोल होता है। एंड दी ऑल गोल्स आर सेट बाय एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ एंड वी कैन नो अबाउट दिस ओनली बाय स्टडीइंग दिस एजुकेशन पॉलिसी। हम इसको अच्छी तरह से समझ करके ही जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी टीचर पर बच्चे ने हमला कर दिया। कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आया था, टीचर ने बच्चे को मार दिया, ऐसा मार दिया कि उसकी मौत हो गई। वी थिंक कि यह जो सिस्टम है यह प्रॉपर्ली काम कर रहा है और कुछ नॉट, ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम अपने एजुकेशन पॉलिसी की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है वो भी काफी हद तक इसके लिए दोषी रहा है। Without education policy, educational institute would lack the structure and unable to meet the needs of students. जब स्टूडेंट्स हमारे संस्थान में आते हैं तो उनके अपने लक्ष्य होते हैं, उनके गार्जियन के लक्ष्य होते हैं। They have certain goals about the students. Now, how can we fulfill that goals? उस गोल्स को पूरा करने के लिए हमें सर्टेन स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। केवल हम किताब लेकर के बच्चों को पढ़ा लें, बच्चे का हॉस्टाइल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सार्वजनिक विकास उसका नहीं हो सकता है। हमें उसे फिजिकली भी फिट रखना है एंड फॉर दैट वी नीड अ लार्ज फील्ड। हमें उसे मेंटली फिट रखना है, हमें उसको काउंसलिंग करने की जरूरत है। यानी हमें ये समझना होगा कि बच्चे की नीड क्या है और वो नीड हमारा एजुकेशन पॉलिसी समझाता है। तो अगर एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगा, जिस संस्थान में वहाँ पर स्ट्रक्चर की कमी होगी, जो बच्चों की आवश्यकता है, जो बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें समझना है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट थिंग्स वी शुड हैव, what type of knowledge we have to impart and how we have to train our students, how we have to cultivate character in our students. Now, two notable observations of Supreme Court of India. हम सभी जानते हैं हमारे देश की जुडिशरी का सबसे ऊंचा जो स्तंभ है वो है सुप्रीम कोर्ट। The decision or the verdict or a statement said by Supreme Court is final for we 140 crore people. That is final one. Supreme Court का एजुकेशन के संबंध में दो टिप्पणी है जो हमें गौर करनी चाहिए। Supreme Court says state education failed to reform human behavior. कितनी बड़ी बात है। हमारा जुडिशरी सिस्टम कहता है कि आज की हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ आज से करने का मतलब बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, although it has not been completely implemented, but partially it has been implemented. This training program is a part of this education system. First of all, teachers have to train, teachers have to be aware that how they have to teach, how they have to treat, and how they have to shape the minds of students. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी बच्चों में बिहेवियर डेवलप करने के कैपेबल नहीं है। दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट वी नीड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। विद इंक्रीजिंग लिटरेसी लेवल देयर इज डिक्लाइन इन ह्यूमन वैल्यूज इन सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ रही है,
we are going ahead in the field of literacy, but proportionally we are going back in the matter of character building. हम कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप नहीं हो रहे हैं। यहाँ ह्यूमन वैल्यूज का मतलब होता है हमारी ऑनेस्टी, हमारा कोऑपरेशन, हाउ वी शुड बिहेव इन सोसाइटी, how should we behave with our parents, our teachers, how we should contribute in our society, in our state, in our nation, how can bring dignity to our family as well as to our nation, how can help the development of nation. People don't know. लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से। आप न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हैं, जानते होंगे बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हुए हैं, क्रिमिनल्स हुए हैं, उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। दे आर वेरी मच एजुकेटेड डिस्पाइट दे आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। वाई? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो फिर ये क्रिमिनल कैसे बन गए? दैट इज द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। वी आर नॉट कैपेबल ऑफ इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज in our students. So these two are the remarks of Supreme Court that must be taken care. इसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है और इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म की जरूरत है और जो रिफॉर्म यहाँ पर किया गया है। द यूनियन कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के बाद हमारी सरकार इसके लिए काफी चौकन्ने हो गई। यूनियन कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट means central government. Central government in July 2020 approved new education policy which is called NEP. New education policy was introduced in July 2020. जुलाई 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया which aims at universalization of education from pre-school to senior secondary level. हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है ताकि हमारा एजुकेशन यूनिवर्सल एजुकेशन हो सके। हमारे स्टूडेंट्स केवल हमारे माहौल में फिट ना बैठे, दे कैन फिट इन एंटायर वर्ल्ड इन एनी कंट्री। उनको कोई समस्या नहीं होगी अगर वो इस एजुकेशन पॉलिसी से स्टडी करते हैं। दिस पॉलिसी डज नॉट एम ओनली अ पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एजुकेशन, द एम इज entire education system from pre-school. हम सबको पता है कि इसके पहले के एजुकेशन सिस्टम में प्री स्कूलिंग जो था वो ऑर्गेनाइज नहीं था। क्लासेस वर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने अपने को क्रिएटिव बनाया और प्री स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया। किंडरगार्टन क्लासेस शुरू हुए, KG1, KG2, नर्सरी, प्री प्राइमरी करके अलग अलग नामों से क्लासेस चलते थे, बट इट वाज ओनली in private institutions and not everywhere. लेकिन अब जो सरकार यहाँ रिफॉर्म कर रही है that will be applicable from pre-primary school. यानी अब हमारी सरकार अपने पॉलिसी में KG क्लासेस को भी शामिल करेगी और इनकी उम्र 1 साल से 6 साल के बीच में है। यहाँ कहा गया है कि अगर 1 साल का भी बच्चा है आप भेज सकते हैं उसको आगे पढ़ेंगे, बट फॉर 3 years it is mandatory, 3 साल के लिए। But earlier, in earlier system, we were sending our words at the age of 6 years in class 1. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये चेंज लाया गया है, हम लोग आगे इसमें समझेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो टोटल जो एम है हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल बनाना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना, साथ ही साथ इसका इस सिस्टम का मेन उद्देश्य है कि हम प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी तक एजुकेशन को कम्प्लीटली रिफॉर्म करना। देखिए ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों को ये काम करना है। वी टीचर्स हैव टू वर्क। अगर इसमें हम ध्यान न देंगे, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इंस्टीट्यूशन इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में सफल नहीं हो पाएगा। इसमें इस एजुकेशन सिस्टम में कहा गया है कि लाइफ पर टाइम हमारी पॉलिसी, हमारी सरकार इसमें कोर्सेज को लाइट करने वाली है। हमारे जो सिलेबस होंगे वो कुछ पहले से कम किए जाएंगे, बट ये बहुत टाइट तरीके से लागू होगा। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, कानून जो है इम्प्लीमेंटेशन ही गलत हो जाता है। यहाँ कंसेप्ट पूरा अलग रखा गया है।
यहाँ हमें सिलेबस को कम करना है, बुक से पैडिंग को हटाने हैं। बहुत सारे किताबों को छोटा करने के लिए बहुत सारे पैडिंग बढ़ दिए जाते हैं, अनावश्यक एग्जाम्पल्स, अनावश्यक बॉक्सेस और क्या क्या करके डाल दिया जाता है, एंड स्टूडेंट्स फील बोरिंग एंड दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम एजुकेशन। अब हमारे कुछ तो आएंगे टू द पॉइंट है, एंड नॉलेज तो देना ही है, बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ। उसके आधार पर उनका असेसमेंट होगा। हम लोग असेसमेंट सिस्टम को भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें समझेंगे। सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एंटायर सिस्टम फ्रॉम प्री स्कूलिंग टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो डिफिकल्टीज आ रही है, जो परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं, कुछ परेशानियों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, जिसकी वजह से हम अपने एजुकेशनल गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर शांत पित्रोदा बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, हो सकता है आप लोग सुने होंगे। ही वॉज एडवाइजर ऑफ PM मनमोहन सिंह इन कांग्रेस गवर्नमेंट। इसके पहले जो सरकार थी उनके पर्सनल एडवाइजर हुआ करते थे शांत पित्रोदा। इन्होंने क्या कहा है, क्या फाइंड आउट किया है एजुकेशन में? 19th सेंचुरी माइंडसेट। एजुकेशन को लेकर के हम सब का जो माइंडसेट है वो 19th सेंचुरी बना है। जब उठने बैठते थे, जब उठने पर बच्चे नीचे बैठ करके और लिखते थे, याद करते थे, वो माइंडसेट है। उस समय आपने देखा होगा किसी ग्रुप में किसी गर्ल्स को पढ़ते हुए आपको नहीं देखा होगा। दैट वाज कंप्लीट डिफरेंट सिस्टम। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीड के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। The present day world is completely different from centuries back. उस समय के लिए वो फिट था, आज के समय के लिए वो फिट नहीं है। तो डॉक्टर शांत पित्रोदा कहते हैं 19th सेंचुरी माइंडसेट है, 20th सेंचुरी प्रोसेस। पढ़ाने का जो तरीका है वो 20th सेंचुरी का है, 20वीं शताब्दी का है, एंड 21st सेंचुरी नीड्स। लेकिन जरूरत क्या है? 21st सेंचुरी। आज अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं है, जहाँ पर आपको AI बेस्ड कोई क्लासेस नहीं होते, कंप्यूटर के मामले में बहुत पीछे हैं। वो छोड़िए, बहुत सारे कोर्सेज में कंप्यूटर क्लासेस को एक तरह से ऑप्शनल रखा गया है। आप पास नहीं करते हो कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट द मेजर सब्जेक्ट। लेकिन आप जीवन में देखिए, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो ये कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट है। सारे काम को लोग बंद कर देते हैं, मोबाइल पर अपना स्क्रॉलिंग करते हैं, कर काम करते हैं। वाई? सो इम्पोर्टेंट, ये हमारी नीड है। अगर इसमें आप अवेयर नहीं होंगे तो कहीं न कहीं आप फिट नहीं हो पाएंगे आज के समय के अनुसार। लेकिन क्या हमारा स्कूलिंग सिस्टम ये एजुकेशन दे रहा है? क्या हम बच्चों को बता रहे हैं कि हम कैसे साइबर क्राइम से बचेंगे? यहाँ तो हो रहा है कि नहीं, कंप्यूटर एडिशनल सब्जेक्ट। अब बच्चे वहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं इसकी जगह हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कहाँ का पढ़ रहे हैं? तो वियतनाम का। कहाँ का पढ़ रहे हैं? कनाडा का। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो आज के डेट में हमारे लिए जरूरी है। इसलिए रिफॉर्म की जरूरत है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी एंड नॉट वेल डिफाइंड रोल्स ऑफ फैकल्टी। दूसरी जो समस्या आइडेंटिफाई की गई है वो है कि हमारे देश में क्वालिफाइड फैकल्टी की कमी है। जैसे क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए वैसे नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग बट दे आर नॉट कैपेबल। यहाँ निसंदेह मैं सरकारी सेक्टर को, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उस पर विशेष करके जो फोकस करूंगा। हम लोग आए दिन ऐसे वीडियो देखते हैं, एवरी डे वी फेस सच टाइप ऑफ videos or examples where teachers are teaching but they are not knowing simple spellings of the word which comes in daily life. सिंपल स्पेलिंग नहीं पता है, बच्चे को गलत सिखा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। What type of country they will form? क्या बनाएंगे? We have a scarcity of faculty. Faculty, qualified faculty. हमें योग्य फैकल्टी की आवश्यकता है, जो हमारे देश के लिए समस्या नहीं। Not well defined roles of faculty. क्लियर कट में डिफाइंड रोल नहीं बताया गया है कि हम टीचर्स का
या फैकल्टी का मतलब हम टीचर से है, चाहे वो स्कूल में पढ़ाते हो कॉलेज में पढ़ाते हो। हमारे रोल डिसाइडेड नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। हम क्लास में जाते हैं, बच्चे को पिन ड्रॉप साइलेंट कर देते हैं, क्या इसको हम कहें कि हम बहुत सक्सेसफुल टीचर हैं? हो सकता है कि बच्चे कुछ नहीं समझते हो इसलिए भी चुप। हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। बच्चे क्या क्लास में कुछ सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं तो कौन जिम्मेवार है? क्या हम सही ढंग से पढ़ा रहे हैं? क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? यहाँ कहा गया है कि हमारे रोल ही डिफाइंड नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसको जो मन में आता है क्लास में जाकर पढ़ा देता है, इससे एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, पॉलिटिकल विलिंगनेस टू मेक चेंजेस। हमारे देश की राजनीति भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इस मामले में नहीं रही है। ये समस्याएं आज की नहीं है, बहुत पहले की रही हैं, लेकिन हमारे जो लीडर्स रहे हैं दे रिमेन वेरी पैसिव अबाउट द रिफॉर्मेशन। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन वो देख रहे हैं, इंटरनेशनल विजिट पे जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं, लेकिन सीख कर क्या आते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये कमी रही है। इस जो बदलाव आज किया जा रहा है, ये बदलाव और पहले होना चाहिए था। नेक्स्ट इज कैप्चरिंग ग्लोबल टैलेंट। ग्लोबल टैलेंट को कैप्चर करना। आपने सुना होगा बहुत सारे इंडियंस हैं जो जाकर अमेरिका में काम करते हैं, इंग्लैंड में काम करते हैं, इटली में काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं। आखिर उस देश ने हमारे देश के उस कैपेबल लोगों को पहचाना। दे हैव आइडेंटिफाइड द टैलेंट ऑफ सच पीपल एंड दे कैप्चर्ड। उनको बुला लिया, वहाँ जॉब दे दिया। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? इफ वी हैव नो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देन वी कैन हायर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हम दूसरे देश से बुला सकते हैं, दूसरे देश से हम मंगा सकते हैं, एंड इन दैट कंडीशन वी कैन इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। तो कैप्चरिंग ग्लोबल टैलेंट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। हमें फैकल्टी के लिए दूसरे देशों से, इन देशों के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे हैं, हमें उन्हें भी लाने की जरूरत महसूस होती है, जो नहीं किया गया है। लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिंग कल्चर। गोल इज प्राइवेट मैनेजमेंट। लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिंग कल्चर। अगर हम लोग विशेष प्लान के तहत चले तो हम लोग भी एजुकेशन को काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारे देश में 76% मेल्स एजुकेटेड है, 54% 54% लिटरेसी महिलाओं में है। इसका मतलब ये है कि लगभग 27 से 30 करोड़ लोग हैं, चिल्ड्रन हैं। 27 to 30 करोड़ चिल्ड्रन आर देयर, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट लिटरेट, वो पढ़ने के लिए। अगर हम पार्टिसिपेटिव कल्चर के हों, हम अपने पड़ोस के एक बच्चे को एजुकेशनली गोद ले सकते हैं। चलो बाबू तो रोज 1 घंटा हम पढ़ाएंगे, स्टडी। और जो ये 76% लोग और एक बच्चे को पढ़ाएं, पूरा देश कुछ ही सालों में 100% लिटरेसी रेट को ऑब्टेन कर लेगा। बट वी आर नॉट डूइंग, वी आर वेरी मच सेल्फिश इन दिस मैटर। हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। ये डिफिकल्टीज है जो आइडेंटिफाई किया गया है हमारे सोसाइटी में। हमें प्राइवेट मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना होगा इस काम में। हमारे स्टूडेंट्स, उनको जो हायर एजुकेशन में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जा सकता है कि आपको अपने स्टडी के पीरियड में 1 या 2 बच्चे को पढ़ाना है और उसका रिजल्ट आपको दिखाना है। यहाँ इसका असेसमेंट आपके एजुकेशन सिस्टम में होगा। अपने आप जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको भी एजुकेशन दी जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर एकेडमिक फ्रेमवर्क एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि हमारी सरकारों के जो फ्रेमवर्क हैं एजुकेशन के, दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, दे हैव प्रॉब्लम्स, दे हैव डिमेरिट्स, दे नीड्स टू बी अपडेटेड। उनको भी सही करने की जरूरत है, उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और बेहतर बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस नॉट फिट, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड ऑपोजिशन टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम जो चलता है, गवर्नमेंट यूज टू इम्पार्ट
फ्री एजुकेशन अप टू एलिमेंट्री लेवल टिल मैट्रिकुलेशन सरकार फ्री एजुकेशन देती है यहाँ पर। बट दिस फ्री एजुकेशन टैग तो लगा हुआ है कि एजुकेशन फ्री है, लेकिन सच्चाई यही है कि एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी ही नहीं है। तो यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। Lots of private schools are there, they are charging heavy fees on the students. Students are not capable, parents are not capable for paying their fees. And जो समाज के अपर सेक्शन के लोग हैं, काफी अमीर है, वो तो पढ़ा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मिडिल रेंज के हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो ऐसे अच्छे स्कूलों में शिक्षा नहीं ले पाते हैं ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ फीस। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऐड करे? अगर हमारे जो खर्च स्कूल्स के आ रहे हैं कुछ गवर्नमेंट पे करे और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको बच्चों से पेमेंट लें, तो क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, एजुकेशन भी मिलेगा, सबको एजुकेशन मिलेगा। तो देयर इज अ लैकिंग ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इन आवर मॉडल ऑफ एजुकेशन। हैंस द नीड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन्हीं सभी समस्याओं को टैकल करने के लिए आज जरूरत है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी in regions and India centered education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into equitable and private knowledge society by providing high quality education to all। हमारा ये न्यू एजुकेशन सिस्टम इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, भारत का अपना, किसी देश से लिया हुआ नहीं, अपना सिस्टम होगा। एंड इसका मेन मकसद क्या होगा? इट विल ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, पूरे सिस्टम को बदल देगा। क्यों? ये सस्टेनेबल एजुकेशन क्वालिटी आएगा, सस्टेनेबल जिसका लाभ हमेशा के लिए रहे। इसमें एजुकेशन न्याय संगत किया जाएगा, एक्विटेबल, दैट शुड बी एक्विटेबल। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कोई अलग स्कूल में पढ़ा इसलिए फेल हो गया, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, और दूसरे स्कूल में पढ़ा इसलिए सक्सेसफुल हो गया। देयर विल नॉट बी सच टाइप ऑफ डिफरेंसेस। ये कोशिश की जाएगी इसके तहत कि शिक्षा जहाँ भी मिले एक समान मिले, ताकि बच्चे कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्पीट कर सके। एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन, सबसे बड़ी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वालिटी पर फोकस किया गया है। वी आर गोइंग टू improve our quality in education system and this will not be routine system। ऐसा इसमें नहीं है कि हम लोग रट करके पढ़ेंगे। अभी जो देखने को मिलता रहा है, बच्चे किताब में कॉपी में लिख लेते हैं, घर पर खूब रखते हैं, लाकर स्कूल में सुना देते हैं, वो गई पढ़ाई, परीक्षा जीत गई और दिमाग से बाहर, फिर वो नए बन जाते हैं, उनके लिए एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है कि स्टूडेंट्स विल implant those values in their life and then they will be assessed। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिफॉर्मेशन कैसे यहाँ होता है? इसके पहले जो पॉलिसी हुआ करता था, the policy which was formulated before this NEP 2020 was introduced in 1986। इसके पहले 1986 में राजीव गांधी की सरकार में ये पॉलिसी बनी हुई and it was later in 1992 modified। थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था और ये बदलाव बहुत कम था, इसलिए इसको नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं कही गई। And name given to 1986 education policy was National Policy on Education, that is NPE। अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था। तो a little bit name change is also there। What are the objective of this? इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सेस एंड इक्विटी, एक्सेस, सबकी पढ़ाई में एक्सेस होनी चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा न छूटे जो स्कूल नहीं जाता। 100% एक्सेस will be provided by this new education system। And equity, there will be equality, no differences among different institutions or different forms। फेयरनेस होगा, पूरी तरह से एक समान एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा। एक्सेस का मतलब यहाँ अवेलेबिलिटी से है, हर बच्चे के उसके सराउंडिंग में स्टैंडर्ड एजुकेशन का सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। आप सबको
हो सकता है पता हो क्या गवर्नमेंट इज गोइंग टू डबल द टोटल एक्सपेंस ऑन एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक जो 3% से भी कम गवर्नमेंट निवेश कर रही थी एजुकेशन सिस्टम में, नाउ आवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक इट डबल। अब 6% ऑफ टोटल जीडीपी विल बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सिस्टम। तो ये क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। राइट टू एजुकेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2009। कुछ समस्याएं तो यहाँ पाई गई थी। यह एजुकेशन सिस्टम वॉज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग 100% स्टूडेंट्स, they were not bringing to their schools. So later in 2009, Right to Education Act came in existence, and according to this, it was mandatory for all the students till the age of 14 years to attend the school. तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर 2009 में होता है। इसी के तहत प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं, हर स्कूल्स में ऐसा होता है। तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट इन प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी एंड एट प्रेजेंट जिसमें हम इसके पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेड, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 29 जुलाई 2020 and the name will be NEP 2020 and main focus of this is quality education। हमारे इस नए पॉलिसी का मेन फोकस है क्वालिटी एजुकेशन। NEP 2020 का जैसे बताया कि इसका फोकस क्वालिटी एजुकेशन पे है। देयर इज अ स्पेशल डिजाइन विजन एंड फ्रेमवर्क। विशेष प्रकार से इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है एंड फ्रेमवर्क इसके तैयार किए गए हैं, और इस फ्रेमवर्क में सबसे पहले टीचर्स को ही क्वालिफाइड किया जा रहा है। As we are doing every year, we have to complete 50 hours training, 25 conducted by different COE and 25 hours by in-house training as we are doing. So first of all, our teachers are being trained, faculties are being trained, they are being made ready to cope with the new challenges coming in new education policy. This will include school system as well as higher education. इसमें केवल हम स्कूल की बात नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन तक का फ्रेमवर्क है, बिल्कुल ग्रेजुएशन तक नहीं, हायर एजुकेशन का भी यहाँ फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। हाइलाइट्स ऑफ NEP 2020 के पॉलिसी का हाइलाइट्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। The new policy aims for universalization of education from pre-school to secondary level with 100% gross enrollment ratio (EER). सबसे महत्वपूर्ण गोल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है, that is 100% gross enrollment ratio। कोई बच्चा छूटे नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा, 100% स्टूडेंट्स को स्कूलों से जोड़ना है, उसको लाना है, ये ऑब्जेक्टिव है इस एजुकेशन पॉलिसी का। कब तक का टारगेट रखा गया है? बाय 1930 तक 100% लिटरेसी रेट इंडिया का होगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड GER इन हायर एजुकेशन 50%, अभी 34% के आसपास है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। अधिकांश बच्चे मैट्रिकुलेशन आते रहते हैं, सो इन हायर एजुकेशन परसेंटेज इज वेरी लेस। So this education policy has set their target to reach 50% gross enrollment by 2025. NEP 2020 will bring 2 crore out of the school children back to their main destination. इस NEP से 2 करोड़ बच्चे जो कभी स्कूल का नहीं गए, they have never gone to any school, they will come back to school. This is a very nice attempt by the government to connect those people who are not benefited by education system. इसके पहले का सिस्टम रहा है 10+2 structure of schooling curriculum is to be replaced। अब तक जो हमारा सिस्टम चलता रहा है, इस सिस्टम में 10+2 का कंसेप्ट है। 10 means class 1 to class 10। एक ही सिस्टम चलता है, बुक नॉलेज आप पढ़ाने हैं, एवरी ईयर एग्जाम लेने हैं। ओनली इन 10th क्लास
only in 10th class there was only one exam. Since we have less time, so we will try to move on faster. तो आज का जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम अब रिप्लेस हो गया है. अब बन गया 5 3 3 5 plus 3 plus 3 plus 4. It means now students are categorized into 4 categories. It will include 12 years of schooling and 3 years of आंगनबाड़ी. 1 साल का आंगनबाड़ी का कोर्स होगा और 12 साल जैसे पहले की होता था 10 plus 2 plus 12. Similarly 12 will be there. Now very small kids at the age of 3 to 8 will cover in 5 segment. Then in 3 8 to 11 and age 11 to 14. Next 3 and at last is 14 to 18. So these are the 4 criteria we will study more details here. कैसे एजुकेशन सिस्टम को रीजनरेट किया जा रहा है? तो प्रेजेंट सिस्टम हमारा ये है, जो यहाँ सबसे लोअर केजी क्लासेस हैं, दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. सरकार को उससे कोई मतलब नहीं था, इंडिपेंडेंट था. 10 years 1 to 10 and then 2 years plus 2 classes were there. But now it has been reformed. अब क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहला जो 5 years का कंसेप्ट है उसको फाउंडेशनल कोर्स कहा जाएगा. This will be foundational course and 2 years will be for class 1 and 2 and 3 years for pre-schooling. जो हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 3 साल. आंगनबाड़ी बाल बाटिका इन सभी में ये बच्चे पढ़ाई करेंगे. इस 5 साल के कोर्स में कोई इस 5 साल में शुरू के 3 साल में जब बच्चे प्री स्कूलिंग में होंगे नो एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा नहीं होगी. ऊपर क्लास 1 और 2 में पढ़ाई की शुरुआत होगी. शुरू के 3 साल में कुछ नहीं पढ़ाना है. क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है इस पर. आज बच्चे स्कूल से क्यों भागते हैं? क्योंकि बच्चों के भागने के पीछे सबसे बड़ा निगेटिविटी इसी ईयर में बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में घसीटना है. बच्चा स्कूल में जाता है और उस पर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है और उसको लगता है कि ये बहुत बुरा है. एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, ट्रेनिंग के समय बताया गया था. एक कसाई एक बकरे को लेकर जा रहा था. बकरा आगे नहीं बढ़ रहा था, बकरा पीछे खींच रहा था, कसाई आगे खींच रहा था. एक बच्चे ने पूछा अपने पापा से, पापा ये बकरा क्यों पीछे खींच रहा है? ये क्यों, कहाँ इसको लेके जा रहे हैं? बच्चे के पापा ने कहा इसको काटने के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए ये पीछे भाग रहा है. बच्चा कहता है मुझे लगा है स्कूल ले जा रहे हैं. See the thinking of the students. बच्चे कितने अफ्रेड हैं स्कूल से. और कहा गया है कि 1 साल से 6 साल तक 1 to 6 years ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, जो परसेप्शन होता है सोसाइटी के प्रति वो डेवलप हो जाता है 6 years. एक बच्चा अच्छी तरह से पहचानता है कि कौन हमारी माँ है उठाएगी तो हम हंसेंगे और कौन गैर है छुएंगे तो रोएंगे. दे हैव परसेप्शन ऑफ नॉलेज, वो सब जानते हैं. अब स्कूल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है. जैसे स्कूल 3 साल में जाता है और किताब पढ़ाया जाता है जबरदस्ती को पढ़ो, उसके बाद लगता है कि ये कंसंट्रेशन क्या है, ये हमको यातना देने के लिए बुलाया गया है. और ये कंसेप्ट जो एक बार डेवलप होता है पूरा जीवन स्कूल से वो भागता है. सो अ बिग चेंजिंग है कि देयर कि आपको पढ़ाना नहीं है. अब क्या रहेगा? खेल के तमाम खिलौने रहेंगे. प्ले स्कूल जिसको कहा गया है, बच्चे खेलेंगे, कपड़े गंदे करेंगे, नो प्रॉब्लम, दे विल गो बैक, नो एग्जामिनेशन. क्लास 1 और 2 में भी पढ़ाई की इंट्रोडक्शन होगी बट परीक्षा नहीं होगी. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट फेज विल बी कॉल्ड प्रिपरेटरी स्टेज. It was foundational stage, now it is preparatory stage. In preparatory stage, 3 years course will be there, class 3 to 5. 3 से लेकर 5वीं क्लास तक प्रिपरेटरी स्टेज होगा और यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा पढ़ाई का. और यहाँ पढ़ाई जो होगी ओरिजिनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज. अगर बच्चा हिंदी बोलता है हिंदी में पढ़ेगा. हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं है. प्राइवेट स्कूल कैन रन देयर एजुकेशन इन इंग्लिश एज इट इज गोइंग ऑन. Next is middle rank, that is for 3 years 11 to 12. और इसमें आप नए सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, इसमें नई भाषा को ऐड कर सकते हैं. इसमें कोशिश की जाएगी. इसमें स्टूडेंट्स कैन लर्न इन अदर लैंग्वेज विच इज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री इवन. हालांकि चाइना की एक भाषा जो मंदारिन है उसको शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था. बट इन कमिंग टाइम मंदारिन को शामिल कर लिया जाएगा. तो 1 language
will be adopted whatever language guardian or children choose. And in secondary level, that will be for 4 years 9 to 12. इसमें बच्चे का एज 14 to 18 years होगा. Now, तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या होने वाला है? 3 साल प्री स्कूलिंग, एज होगा बच्चे का 4 साल 5 साल 6 साल. एंड नो एग्जामिनेशन, नो यूनिफॉर्म कोड. बच्चे जब इस एज में होंगे कोई यूनिफॉर्म नहीं, इसको जो पॉइंट करना है वो आएंगे. दे विल ओनली एंजॉय फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स. एज ग्रुप 7 to 8, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास विल बी देयर. नो एग्जाम इन दिस स्टेज आल्सो एंड नो यूनिफॉर्म कोड. तो शुरू के दूसरे क्लास तक कोई यूनिफॉर्म कोड होने वाला नहीं है, कोई परीक्षा भी नहीं होने वाली है. प्रीपरेटरी स्टेज स्टार्ट होगा एग्जाम एंड 9 10 11 एज होगा बच्चे का. क्लासेस विल बी 3rd 4th and 5th. इट विल बी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग. एक्टिविटी, इसमें बच्चों को एक्टिविटी से पढ़ाएंगे, क्विज कराएंगे, गेम कराएंगे. प्रेफरेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, यहाँ पर मदर टंग को अधिक प्रेफर किया गया है. अगर स्कूल्स कैन टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश कैन बी कंटिन्यू in middle stage. So I have explained this, so we are moving ahead since time is precious. In higher education, ये समझना होगा हम लोगों को बहुत डिटेल्स में. हायर एजुकेशन में क्या होगा? अब पहले तो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स हुआ करता था. अर्लियर ग्रेजुएशन वाज फॉर 3 इयर्स, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. नाउ ग्रेजुएशन विल बी फॉर 4 इयर्स. 4 साल का ग्रेजुएशन होगा. एंड इन 4 सालों में ये सिस्टम किया गया है कि इफ यू कंप्लीट फर्स्ट ईयर देन नो प्रॉब्लम, that will be 1 degree, that will be called certificate. आपको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा. 1 साल पूरा किया. अगर 1 साल के बाद आपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और 2 साल के बाद फिर मन में आ रहा है कि नहीं अब पढ़ेंगे, मेरे पास पैसा आएगा, अगेन यू कैन ज्वाइन द सेकंड ईयर. अर्लियर इट वाज नॉट पॉसिबल. पहले छोड़े तो फिर शुरू वाले. देन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इयर्स इट विल बी डिप्लोमा कोर्स. इफ स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग 3 इयर्स देन दैट विल बी कॉल्ड बैचलर कोर्स. बैचलर डिग्री मिलेगा. एंड फॉर 4th ईयर 4 साल कंप्लीट कर लिया, दैट विल बी डिग्री ऑफ रिसर्च. रिसर्च की डिग्री होगी. व्हाट विल बी आफ्टर दैट? इसके बाद आता है मास्टर डिग्री, एमए की डिग्री. दैट विल बी फॉर 1 ईयर और 2 ईयर. 2 ऑप्शन होंगे. इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल 4, देन यू विल अडॉप्ट ओनली 1 ईयर कोर्सेज फॉर एमए. एंड इफ यू हैव लेफ्ट टिल फॉर ओनली, यहाँ जो बैचलर डिग्री है उसको कंप्लीट माना जाता है और आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं. लेकिन बाद में अगर एमए करना चाहते हैं तो 2 साल का एमए आपको करना होगा. कैसे होगा असेसमेंट बच्चों का, ये ध्यान रखना है. तो बच्चों का जो असेसमेंट है दैट विल बी 360 डिग्री असेसमेंट. इट विल बी मल्टी डायमेंशनल. ऐसा नहीं परीक्षा दे दी बच्चा आंसर लिखा डन. रिपोर्ट कार्ड, आज तक का रिपोर्ट कार्ड 1 से 2 पेज का हुआ करता था. नाउ रिपोर्ट कार्ड विल बी 30 to 40 पेजेस. हर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड 30 से 40 पेज में होगा. इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा. एंड ओनली वी टीचर्स आर नॉट गोइंग टू असेस द स्टूडेंट्स. असेसमेंट विल बी डन बाय डिफरेंट पार्ट्स. और कौन असेस करेंगे? सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट. बच्चे से हम लोग पूछेंगे बताओ तुम इस फील्ड में अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हो. He will assess himself. खुद बताएगा, क्योंकि जिंदगी में आदमी को खुद को ही असेस करना पड़ता है. हम कितना सक्सेसफुल हैं या फेलियर हैं ये हमें ही असेस करना होता है. तो we should teach the student to assess themselves during the beginning, ताकि वो फ्यूचर में भी अपने असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराए. सेल्फ असेसमेंट. इसके बाद क्या होगा? असेसमेंट बाय पेरेंट्स. पेरेंट्स असेस करेंगे. पेरेंट्स के मार्क्स भी इसमें ऐड किए जाएंगे. पीयर असेसमेंट. क्लास में जो अदर स्टूडेंट्स होंगे वो असेस करेंगे. इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि बच्चे इसकी वजह से बच्चों से दुश्मनी नहीं करेंगे. तो जानते हैं कि हमारा मार्क्स अगर लड़ाई करेंगे तो हमको नंबर अच्छा नहीं देगा, तो दे विल बी कोऑपरेटिव इन क्लासेस, उनमें सुधार होगा. देन असेसमेंट बाय टीचर. टीचर भी असेस करेंगे. असेसमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी सोर्सेस. डिफरेंट तरीके होंगे जिसके द्वारा ये असेसमेंट होने वाला है. So here are some differences which were in earlier policy and current policy. So we are skipping them. We are moving ahead. Who will decide the curriculum? Books कौन तैयार करेंगे? क्या पढ़ना है कौन तैयार करेगा? So
this will be prepared by NCERT. NCERT will develop NCPFECCE, National Curriculum and Pedagogical Framework for Early Child Care and Education for Children to the age of 8 in PG. A national book promotion policy is to be formulated. एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इसमें है। किस तरीके से आपने सुना होगा बैंक में हम जाते हैं तो वो हमारा सिविल स्कोर चेक करते हैं, सिविल स्कोर। Now same system is going to be implemented in graduation system in new policy. क्रेडिट बैंक होगा, क्रेडिट बैंक आप ऑनलाइन जाएंगे अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे and that will be applied to most of the renowned institutions. तो हायर एजुकेशन में अब बच्चे की क्वालिटी क्या है, that will be universal in one bank and there it can be checked by any institution. किसी भी संस्थान पर आपको चेक करके बताया जा सकता है कि बच्चे की क्वालिटी क्या है। तो ये ऑनलाइन होगा और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे? तो बोर्ड एग्जाम और डे 10 and 12। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 में बोर्ड नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। 10 में भी बोर्ड होगा और 12 में भी बोर्ड होगा। बोर्ड विल बी कंटिन्यू। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ लिया है। दैट इज 100% की किया, सारे बच्चों को 100% ऐसे उसमें हमें लाने हैं, एजुकेशन सिस्टम से उन्हें कनेक्ट करना है। ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। इस फ्रेमवर्क को, इस एजुकेशन सिस्टम को किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप किया है? इसके नेम से आज लिए गए हैं। पद्म भूषण कस्तूरी रंजन, he was the chairman, he was the head of entire committee. 12 people were there in the committee who formulated, who framed this entire structure. So, and he was chairman. Dr. Vasudha Kamal, VC, Vice Chancellor, SPM University, Mumbai. Sri KJ Alphonse, retired bureaucrats. In this way, all these 9 names are given here, but actually 12 people were there. They have contributed in the formation of this work. तो आपका जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम 5, 3, 4 and 4 until PhD, MPhil नहीं होगा। According to new education policy, MPhil is removed out and PhD will have their own courses. What is aim of education? Education का aim क्या है? What is the aim? Now, to bring desirable change in behaviors of the learners. Learners के behavior में change लाना। जो आज हमारे बच्चे बहुत वायलेंट हो रहे हैं, उनमें सही ढंग से बिहेवियर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो उद्देश्य है हमारे एजुकेशन का। टू फॉस्टर ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी एंड डेवलप हेल्थी एटीट्यूड्स एंड गुड वैल्यूज। हमारे एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम है ऑब्जेक्टिव टू डेवलप ऑल राउंड डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। इसमें चाइल्ड की पर्सनालिटी, चाइल्ड का हेल्थ, चाइल्ड का एटीट्यूड, ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। हर स्टेज में एजुकेशन की पार्ट का मेथड सेम नहीं होगा। According to his group, that will be changed and it has been made suitable according to the need of the user. There are difference in aims and objectives, primary, secondary, higher education, due to variance of age and maturity experience. Of course, our students at different age have different types of maturity level. So, entire plan is designed according to their age only. And the main objective is proper emotional growth also. So, this was the new education policy in which I tried my best to explain each and everything. But since time was less, lots of things are more to be studied, but we have boundary of timeline. So we are going to complete today's session here only. I hope you all have enjoyed the session, and of course it will be beneficial for we teachers. We must be knowing
that what is our duty, our responsibility. तो इसके द्वारा हम लोगों ने समझा इस चीज को कि कैसे हमारा फंक्शन काम करेगा, कैसे हमारी ऑब्जेक्टिव है, and certainly by this education system we are going to bring back 100% the students in our school. There will be a great reformation by this education system, and we are ready to accept it. We are preparing for ourselves. Our institutions are preparing, and of course it will give good result, and in coming time it will happen. Thank you.